मॉर्निंग, सुबह बखैर। यूरो बाइक सिटी में आपको खुशामदीद। इस वक्त मैं हूँ जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में और ये है दुनिया का सबसे बड़ा बाइसिकल ट्रेड शो जिसको हम यूरो बाइक कहते हैं। 1400 एग्जिबिटर्स हैं। यहाँ पर आपको मैं मुख्तलिफ बाइसिकल के स्टॉल पर लेकर जाऊँगा। गियर सिस्टम्स हैं, बैग्स हैं, डिफरेंट तरह की बाइसिकल्स हैं, कार्गो बाइसिकल्स हैं, रोड बाइसिकल्स हैं, ट्रैकिंग बाइसिकल्स हैं, ई बाइक्स हैं। कोशिश करेंगे कि आपको जितना हो सके यहाँ पर दिखा सकें। तो आएँ यूरो बाइक सिटी को देखते हैं। I have ridden from the southernmost city in the world, from Argentina all the way to Alaska, 33,000 kilometers, and this picture was taken in Bolivia. Experience has been amazing. इस वक्त हम हैं गेट्स कार्बन ड्राइव के स्टॉल के ऊपर। गेट्स कार्बन ड्राइव जो है ये बेल्ट्स बनाते हैं। अगर आपने मेरी साइकिल को गौर से देखा हो तो उसमें आपको नज़र आएगा कि उसके अंदर चेन नहीं है बल्कि उसके अंदर एक बेल्ट लगी हुई है। तो उस बेल्ट का मकसद ये होता है कि आपको मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसका वेयर एंड टेयर कम होता है, उसकी लाइफ ज़्यादा होती है। नॉर्मल जो चेन होती है 3000-4000 किलोमीटर तक चलती है, जबकि जो बेल्ट होती है उसकी लाइफ जो है उससे 3-4-5 गुना ज़्यादा होती है। कार्बन बेल्ट जो ड्राइव है ये सिंगल स्पीड होती है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो इसके लिए आपको इंटरनल गियर बॉक्स इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसा कि इस सिलसिले में यहाँ पर आपके पास पिनियन का गियर बॉक्स है। Why should people switch from chain to a belt? They are made of components that cannot rust, and they will not stretch over time. So those are two attributes of a chain, that as the chain wears, it tends to stretch and can affect shifting, and they can obviously tend to corrode, especially if they're not maintained very well. Yeah. But then by nature, even if a chain is maintained quite well, it doesn't have the lifetime of a belt. So our belt system, our premium belt system CDX, is made out of a polyurethane material with certain fabric wear layers and carbon fiber cords. Yeah. Gates patented carbon fiber cords inside of belt drives and has been doing that. All of our bicycle belts are carbon cord, and that system, it's no longer a consumable. Like a cassette and a derailleur are consumables. The components will wear out. You will have to pay significant money to replace them. And especially in off-road conditions, what we're seeing, and with e-bikes, is that you tend to be in the higher gears now because you have that additional more assistance. And you tend to be in those smaller and smaller gears on a cassette. Those have less and less teeth. Those wear out very fast. And now you have to replace a very expensive cassette. Whereas with Gates carbon drive and a Pinion gearbox, you have sprockets that are very long wearing, hard materials, very durable, corrosion resistant. And again, there's a unique set of advantages that really compound. When I saw the belt for the first time, the question that came to my mind was that if I pedal, will it stretch? So will I be losing some energy? Because, you know, you look at it and you think that maybe it is made of rubber. Right. But it is not. And then when you start pedaling, then you notice that it doesn't stretch and all the power gets transferred to the drive system. Exactly. An example of the construction of the belt. The CDX belt has a ribbed back, which is our classic identifying design, and can have on the inside a Bluetooth fabric as well that's optional, which again identifies it as a Gates carbon drive product. We have ultra heavy duty tensile cords. We mentioned the center track cut, which is allow the belt to be guided on the sprockets with outside flanges so we can decrease the width. It also has advantages for debris shedding, which is important for the type of adventures you are on. It's been amazing. So thank you so much, Chris. Thank you. And can't wait to share more stories with you. We really can't wait to follow your adventure. Thank you. तो ये है जी एबुस की दुनिया, और ये बाइसिकल लॉक्स बनाते हैं, और मैं शुरू से अपने तमाम बाइसिकल ट्रैवल के ऊपर ये एबुस के लॉक्स इस्तेमाल करता हूँ। इसमें आपको कुछ नज़र आएंगे केबल से बने हुए लॉक्स हैं, कुछ इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो लॉक्स जो कि फोल्ड हो जाते हैं, कुछ चेन से बने हुए हैं, कुछ इसमें ऐसे लॉक्स हैं जो कि लिटरली जिनको ब्रेक करना तकरीबन मुश्किल ही नहीं, तकरीबन नामुमकिन है। और उसके लिए बाज़ लॉक के साथ वो एक्चुअली गारंटी भी देते हैं कि अगर आपकी साइकिल चोरी हो जाएगी, अगर इस लॉक को किसी ने ब्रेक कर लिया तो हम आपको उसके पैसे देंगे, ना सिर्फ लॉक के बल्कि बाइसिकल के। ब्रूक्स जो हैं ये लेदर की सैडल्स बनाते हैं, और इनकी सैडल्स मैं 2015 से इस्तेमाल कर रहा हूँ।
जो लोग समझते हैं कि जी सैडल्स को नरम होना चाहिए और नरम होने जितनी नरम होंगी उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल होंगी, हालांकि इससे बिल्कुल ऑपोजिट वाली बात है। जो अच्छी सैडल्स होती हैं वो एक्चुअली हार्ड होती हैं और लेदर से बनी होती हैं। तो उसका फ़ायदा ये होता है लेदर सैडल का कि जो लेदर की सैडल है, जब उसको आप वक्त के साथ साथ इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो वो आपके बॉटम के हिसाब से वो अपनी शेप चेंज करती हो, तो फिर बिल्कुल इस तरह बन जाता है जिस तरह आपका एक दस्ताना होता है जो आपके हाथ में अच्छा फिट बैठता है, बिल्कुल उसी तरह से वो सैडल भी ना आपकी बॉडी की शेप के हिसाब से बन जाती है और फिर उसमें कोई प्रेशर पॉइंट नहीं बनते। तो मेरी जो फर्स्ट सैडल थी वो है B17, जो जर्मनी से पाकिस्तान के ट्रिप पर मैंने इस्तेमाल की थी, वो ये वाली थी, जिस पर अर्जेंटीना से अलास्का का सफ़र किया। वो भी B17 थी, लेकिन उसकी जो लुक थी वो एजेड लुक नहीं थी, वो ये वाली थी लुक। जबकि इस बार जो है वो मैंने इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, वो B17 कार्व्ड है और वो ये वाली सैडल है। ठीक है, इसमें लेदर नहीं है। लेदर का एक जो थोड़ा सा जिसका आपको ख्याल रखना होता है वो ये रखना होता है कि आपको बारिश वगैरह में उसको कवर करना होता है, अदरवाइज़ बारिश में वो सैडल नरम हो जाती है और जब उसके ऊपर आप बैठते हैं तो उसकी शेप थोड़ी सी ख़राब होने का अंदेशा होता है, तो आपको उसको कवर करना होता है, उसका ख्याल करना होता है। जबकि ये जो है ये एक सिंथेटिक मटीरियल है और इसके अंदर दरमियान में एक उन्होंने एक कार्विंग दी हुई है जिससे आपको ज़रा कंफर्ट लेवल आपका ज़रा ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो इस दफ़ा मैंने ये C17 इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये हम इस वक्त एक सैडल की दुनिया में हैं और यहाँ पर बेतहाशा किस्म की सैडल्स हैं और मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आपको सैडल पर ज़्यादा देर बैठने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप स्विच करें किसी लेदर सैडल के ऊपर। इस वक्त हम हैं स्टीवंस बाइक्स के बूथ के ऊपर, मेड इन हैम्बर्ग। और स्पेशल बात इनकी ये है कि जो मेरा अर्जेंटीना से अलास्का का ट्रिप था 2016 से 2020 तक, वो मैंने स्टीवंस बाइक्स की साइकिल के ऊपर किया। वो बाइसिकल थी स्टीवंस बाइक्स P18 लाइट। वो बाइसिकल अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर इस वक्त इस बूथ के ऊपर नहीं है, नहीं तो मैं आपको वो दिखाता, लेकिन ज़रूर आपने मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर उस बाइसिकल को देखा होगा जिसके अंदर पिनियन गियर हब लगा हुआ है, जिसके अंदर बेल्ट ड्राइव भी लगी हुई है। पिछले दिनों में यहाँ के इनके जो फाउंडर हैं, जो इनके ओनर हैं, उनसे भी मिला, उनको मैंने अपना एक पोस्टर भी दिया, उनको शुक्रिया भी अदा किया। तो ये हमारा है स्टीवंस बाइक्स के, बहुत अच्छी साइकिल्स बनाते हैं, बहुत एस्थेटिक और बड़ी पॉपुलर इनकी बाइसिकल्स हैं। ज़्यादातर ये अभी रोड के ऊपर ग्रेवल बाइसिकल्स बनाते हैं और ट्रैकिंग बाइसिकल्स भी बनाते हैं और अभी ये ई बाइक की तरफ भी स्विच कर चुके हैं। तो आप इनकी बाइसिकल्स देखें, बहुत ज़बरदस्त बाइसिकल्स हैं। वी हैव Jacob with us, one of the CEOs at the Stevens Bikes. Jacob, thank you so much for all the support that Stevens Bikes has provided me, and this Stevens bicycle has become literally a part of me. So thank you so much. Thank you and welcome at Stevens booth here at the Eurobike show in Frankfurt. And thank you again for riding the P18 and your amazing impressions, pictures and stories with this bike. We have bikes for everybody. We have the normal city bikes, trekking bikes, kit bikes, but also, like you say, gravel bikes, road bikes, and that's also growing. The people, they want to stay outside. They are really go riding sportive, but also commuting thing. Go to work and have a bike in daily business. Yeah. And I invite you to Pakistan, on your Stevens bicycle, and maybe we'll ride together. Yeah. Thank you so much. That was a pleasure. Yeah. Thank you so much. Thank you so much, Cameron. Yeah. ये इस वक्त हम हैं वी के बूथ के ऊपर। नॉर्मली ये समझा जाता है कि बड़ों की साइकिल में और छोटों की साइकिल में क्वालिटी का बड़ा फ़र्क होता है। अभी मैं रिसेंटली अपने भांजे के साथ लैया में कुछ वीडियोस बना रहा था, तो मैंने देखा कि वो उसकी चेन उतर रही थी और बड़े ही सब स्टैंडर्ड किस्म के कंपोनेंट्स उसके अंदर लगे हुए थे। जबकि यहाँ पर आकर अब जब आप देखते हैं ना बच्चों की साइकिलें, तो उसी बिल्ड क्वालिटी के साथ हैं जिस तरह के बड़ों की साइकिलें हैं। यानी आपको रिम स्ट्रॉन्ग मिलेगा और उसके साथ जो चेन का सिस्टम है उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लगी होगी और उसका जो हैंडल और सीट और जो ब्रेक्स होंगी वो उसी हाई क्वालिटी कंपोनेंट्स के साथ होंगी जिस तरह के हमारी बड़ों की साइकिलें हैं। और बाज़ जो बच्चों की साइकिलें, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे जो 3-3 साल के बच्चे जो चला रहे होते हैं साइकिलें, उनके अंदर गेयर सिस्टम भी होगा और वो भी हाई क्वालिटी। तो ये बाइसाइकिल्स मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये देखें यहाँ पर हमारे पास बच्चों की साइकिलें कितनी खूबसूरत और कितनी हाई क्वालिटी बाइसाइकिल्स हैं। थोड़ी एक्सपेंसिव ज़रूर हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये वाली जो साइकिल है ये तकरीबन 400 यूरो की है। 400 यूरो का मतलब ये है कि तकरीबन 80,000 रुपये की या 90,000 रुपये की साइकिल, जो कि हमारे यहाँ
शायद थोड़ी सी महंगी हो, लेकिन यहाँ पर बस ये दिखाना था कि साइकिल को लेके सब लोग सीरियस हैं और बहुत ही हाई क्वालिटी ये बच्चों की बाइसिकल्स हैं। जी इस वक्त हम हैं श्वाल्बे के बूथ के ऊपर। श्वाल्बे जो है मेड इन जर्मनी, बाइसिकल्स के टायर्स बनाते हैं और मैं सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं के टायर ही इस्तेमाल करता हूँ। 2011 से इनके मैं साइकिल टायर इस्तेमाल कर रहा हूँ और कुछ उसमें से ऐसे हैं जो वाकई में पंक्चर नहीं होते, जिनमें से एक है, इनकी जो लाइन है वो है मैराथन प्लस की सीरीज़ है और उसके टायर्स जो है 2011 में मैंने इस्तेमाल किए, एक भी पंक्चर नहीं हुआ। 2015 में जब मैं जर्मनी से पाकिस्तान के टूर के ऊपर कोई पंचर नहीं हुआ। 2016 से 2020 तक मैं उनके टायर इस्तेमाल करता रहा, कहीं कहीं पंचर हुए लेकिन बहुत कम, और वो भी तब होते हैं जब आपके पास वाकई कोई बहुत बड़ा कोई कील आ जाए, कोई बहुत बड़ा कोई शार्प किस्म का कोई उसमें कांटा लग जाए, और या फिर जब टायर थोड़ा सा पुराना होना शुरू हो जाता है तो उसके अंदर बाज़ जगहों के ऊपर, जब कनाडा में मेरे साथ ये हुआ था कि कहीं कहीं आपके पास जो फटे हुए टायर होते हैं उनकी कुछ स्मॉल वायर्स होती हैं बड़ी शार्प किस्म की, वो टायर के अंदर घुस जाएं तो वो पंक्चर हो जाता है, अदरवाइज़ ये पंक्चर नहीं होते। जो आखिरी मेरे टायर्स थे जो मैंने अलास्का में इस्तेमाल किए, सिर्फ अलास्का में एक दफ़ा पंक्चर हुआ। Got my first flat on the Dalton highway। और उनके ऊपर मेरे ख्याल में मेरे पास 4-5 हज़ार किलोमीटर हो गए हैं, सिर्फ एक पंक्चर हुआ। तो उनमें से एक टायर जो है वो ये है मैराथन प्लस सीरीज़ का, ये उसका ज़रा डिफरेंट वर्जन है, ई बाइक का वर्जन। ई बाइक का वर्जन जो है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है। और अभी मैं आपको एक दूसरा टायर दिखाऊंगा, उसका नाम है स्मार्ट सैम, जो कि मेरी नई सैंटोस बाइसाइकिल पर है। स्मार्ट सैम टायर है श्वाल्बे का और इसकी खसूसियत ये है कि ये रोड के लिए भी ठीक चल जाता है और मिक्स टेरेन के लिए। तो इसके अंदर जो देखें ये जो ट्रेड्स बने हुए हैं, तो इसका फ़ायदा ये है कि आपके पास अगर ग्रेवल सरफेस होगी, लूज सरफेस होगी तो उसके ऊपर ग्रिप करेगा। और दूसरा यहाँ पर ये, लेकिन जो सेंटर में लाइन है ये आपके पास जो रोड के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। स्मार्ट गार्ड है और ये पंक्चर नहीं होगा इतनी आसानी से। उनकी परफॉर्मेंस लाइन है, श्वाल्बे टायर्स आर द बेस्ट। My name is Benno, and I'm the founder of Benno Bikes. Basically, what we do is we make a bike, not a cargo bike and not a regular bike, but in between. You know, what we believe in is the right bike for people is what I would call a regular bike that can carry more. If you really want to replace some cars or you want to replace car trips, you know, with a bicycle, your bicycle must be more capable. But at the same time, when your bicycle is more capable, we don't want your bike to ride bad, be too big, or look ugly. What we focus on is to make a bike that has a regular size. And what we are doing, you know, on this model here, you know, we try to keep the center of gravity low, so we pick a 24-inch wheel, not too big, so it's lower. Then we get a big, very big wheelbase, you know, so we have a very stable ride, and when you put a load on it, it's very stable to ride. And then you also have a very strong wheel, and you keep the bike very short. All of these bicycles are electric bikes, right? Yeah. Yeah. We use Bosch systems, you know, and that's very important. You know, when you have a bike that can carry more, you need something that can help you carry. You put the electric on a bike, you can load it up, you can have bigger tires, you can have smaller tires, you don't have to be aerodynamic because the motor will help you pedal and you can use them, you know, more often. You can go further, you can go faster, you can go uphill, you can go in the headwind, you know, you don't get sweaty, and you can bring a lot more. So it changes really the way people think about bicycles. You can, you know, mount seats on them, and then I saw that, you know, carry such big gallons for milk or for fuel, Anything. I mean, the idea is that we provide a bike that does what you need to do. You know, and I cannot imagine what you're going to do. So I'm going to make a bike that inspires you to do things that you may not want to do. You can do many different things. You know, you can just have the bags, or you can go bike packing, or you can have one child or two children, or two children that are larger, you know, without a baby seat, you know. So you have a lot of different varieties. I see the smile on your face. It's very important to us that
people are smiling when they're riding because this is what we It's fun. do. Yeah, it's gotta be, you know, cycling gotta be fun. तो जी इस वक्त आ गया है वक्त मेरी नई बाइसिकल रिवील करने का। तो ये है सैंटोस ट्रैवल मास्टर 3 प्लस बाइसिकल। इसमें जो सबसे मेरे लिए इम्पोर्टेंट था वो था इंटरनल गियर बॉक्स। पिछली साइकिल में भी मेरे पास पिनियन का P18 गियर बॉक्स था, क्योंकि सारे गियर इसके अंदर रहते हैं, महफूज रहते हैं, इसको कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसको आपको कोई वेदर की वजह से क्लीन करने का इशू नहीं आता, गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम नहीं आता। और दूसरा इसमें जो ख़ास बात है जो कि मेरे पिछले बाइसिकल में भी था वो ये है कि इसके अंदर गेट्स कार्बन ड्राइव की बेल्ट है, यानी ये पूरा जो ड्राइव सिस्टम है ये वर्चुअली बिकम्स मेंटेनेंस फ्री। फिर जो इस सैंटोस की ख़ास बाइसिकल की बात है कि इसमें हैवी ड्यूटी बाइसिकल टूरिंग के लिए बनी हुई है और इसमें थिक टायर्स माउंट कर सकता हूँ। अभी इसके ऊपर 2.6 इंच के श्वाल्बे के टायर्स हैं जो कि ऑन और ऑफ रोड दोनों के लिए बहुत अच्छे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर इसके ऊपर बॉटल्स को माउंट कर सकते हैं। 2 बॉटल यहाँ माउंट हो सकती हैं, बॉटल्स नीचे भी माउंट हो सकती हैं। इसके अलावा आगे और पीछे रैक्स लगे हुए हैं सैंटोस के बिल्ड किए हुए, जिनके अंदर मैं ऑर्टलिब के बैग्स डालूँगा। फ्रंट बैग हैं, फिर रेयर बैग्स हैं। इनके अंदर सारा सामान जो है, लैपटॉप हो गए, कैमराज हो गए, लेंसेज हो गई, हार्ड ड्राइव्स हो गई, सारे का सारा खाना हो गया, पानी हो गया, साइकिल के स्पेयर पार्ट्स हो गए, जो भी सारे कपड़े हो गए, सब चीज़ें जो हैं वो इन बैग्स के अंदर अच्छी तरीके से आ जाती हैं और ये वाटरप्रूफ बैग हैं। इसके अलावा जो है इसके ऊपर यहाँ पर ख़ास बात यह है कि इसके अंदर हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स हैं, ठीक है, ताकि आप जब लॉन्ग डिसेंट्स के ऊपर जा रहे होते हैं तो आपकी ज़्यादा फोर्स आपको नहीं अप्लाई करनी पड़ती। इन ग्रिप्स को आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ये काफ़ी चौड़ी ग्रिप्स हैं। इसका जो रबर है ये आपको वाइब्रेशंस से आपके हाथों में दर्द नहीं पड़ता, आप इसको ऐसे भी पकड़ सकते हैं। वी कैन सी द शिफ्टर हेयर, ठीक है, ये जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट गियर से लेकर 18 तक कोई इशू नहीं होता। किसी भी टाइम आप खड़े हुए भी इवन के साइकिल नहीं भी चला रहे तो आप गियर शिफ्ट कर सकते हैं। बाइसिकल के अंदर शॉक्स नहीं लगे हुए, लेकिन इसके अंदर ये हैंडल बार के ऊपर ये एक डैम्पर सा एक सस्पेंशन के लिए सिस्टम लगा हुआ है कि यानी जब आप किसी बम्पी सरफेस पर हैं तो ये शॉक काफ़ी एब्जॉर्ब करेगा। किक स्टैंड है। और इसके अलावा इस बाइसिकल का नाम मैं काफ़ी अर्से से कुछ सोच रहा था कि इसको क्या नाम दूँ, व्हाट शुड बी द नेम ऑफ द बाइसिकल। तो मैं अपने हीरो डैनी मैकेस्किल से, जो कि मशहूर हैं पूरी दुनिया में अपने जो साइकिल के ऊपर वो जो करतब दिखाते हैं, जो स्टंट्स दिखाते हैं, तो आई वॉज लकी टू मीट हिम येस्टरडे एंड इन्वाइट हिम टू चेक आउट माई बाइसिकल। और एंड ही वॉज़ वेरी काइंड कि उन्होंने मुझे अपना एक प्रिंट भी दिया, मैंने भी उनको अपना एक बोलीविया का प्रिंट दिया, एंड देन ही साइंड द बाइसिकल। ये उनका नाम लिखा हुआ है, ये उनके सिग्नेचर्स हैं, डैनी मैकेस्किल। सो अब मैं इस सैंटोस ट्रैवल मास्टर 3 प्लस का नाम जो है वो डैनी मैकेस्किल पर रखने लगा हूँ। तो मैं इस बाइसिकल को आप कहूँगा डैनी। तो ये है मेरी बाइसिकल एनोडाइज्ड फ्रेम के साथ। कोई इस पर कलर नहीं हुआ तो कलर फेड आउट नहीं होता इसका। और इसके ऊपर ये ब्रूक्स की सैडल है। वेरी एक्साइटेड टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑन दिस बाइसिकल। सो थैंक यू सैंटोस, थैंक यू Pinion, and thank you Gates, as well as thank you Ortlieb for your support. Kollege mit links bremsen. Genau. ये स्ट्रोमर का बूथ है यहाँ पर। ये एक स्विस कंपनी है और ये प्रीमियम क्वालिटी की ई बाइक्स बनाते हैं। और उनमें जो उनकी सबसे जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है वो उसके सामने हम खड़े हुए हैं। और ये इसको मैं कहता हूँ कि ये बिग डैडी ऑफ ई बाइक्स है। इसकी ख़ास बात ये है कि इसके ऊपर आप 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा सकते हैं। मुख्तलिफ लेवल्स हैं आपके असिस्टेंस के, आपको पैडल फिर भी करना है, लेकिन मुख्तलिफ लेवल्स हैं असिस्टेंस के। और इसकी जो रेंज है वो इनक्रेडिबल रेंज है, 260 किलोमीटर्स। और इसकी जो ख़ास बात इसके अलावा और है कि इसके अंदर ABS ब्रेकिंग सिस्टम है, यानी आपके जो नॉर्मली आप ब्रेक लगाते हैं जब बड़े हार्ड पुल करते हैं
तो व्हील लॉक हो जाते हैं, जिससे आपका स्लिप होने का अंदेशा होता है। लेकिन इसके अंदर ABS सिस्टम है, जिससे आपको ब्रेकिंग में आसानी रहती है और इफ़ेक्टिव भी ज़्यादा रहती है। और इसके अलावा इसके अंदर GPS इनबिल्ट है, और इसके अलावा इसके अंदर एक स्मार्ट लॉक है, यानी जब आप एक लोकेशन के ऊपर से खड़ा करते हैं तो इसके अंदर खुद ही लॉक लग जाता है। और इसके अलावा इसके अंदर जो है वो पिनियन का स्मार्ट शिफ्ट टेक्नोलॉजी है कि आपने जब ये इंटरनल गियर बॉक्स लगा हुआ है, आपने सिर्फ क्लिक करना है और फिर ये इसके अंदर गियर चेंज हो जाएगा। और उसके साथ इसकी मोटर लगी हुई है, ठीक है, और डिस्क ब्रेक्स हैं, और साथ में ये गेट्स कार्बन बेल्ट ड्राइव की ये बेल्ट भी साथ में लगी हुई है, ठीक है। और इसके ऊपर इसका देख लें, इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉकपिट है यहाँ पर, जिसके ऊपर ये आपकी स्पीड बताता रहता है, आपका बैटरी लेवल बताता है। और इसका बड़ा कूल किस्म का हैंडल बार है। इसके अंदर ये देख लें, ये उसकी बेल है, ये उसका प्लस माइनस जो है इसका असिस्टेंस लेवल है, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट शिफ्ट गियर सिस्टम है। और इसके सामने जो है इसकी लाइट है, इसका लैंप, वो भी बहुत कूल किस्म का इनका लैंप है। स्विस टेक्नोलॉजी है, और इसकी कीमत जो है वो है 12,140 यूरो, जो कि पाकिस्तानी रुपए में बनती है तकरीबन 25 लाख। अब लोग कहेंगे 25 लाख में तो कार आ जाती है। भाई कार आ जाती होगी, लेकिन बाइक्स जो हैं उनमें जो कंपोनेंट्स हैं, जो ख़ास तौर पर साइकिल कंपोनेंट्स से छोटे होते हैं, लाइट वेट होना बहुत ज़रूरी है और रोबस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और ये बाइसिकल प्रीमियम क्वालिटी की है, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ट्राई ज़रूर करें। अब इस बाइसिकल की अगर आप बैटरी देखें तो काफ़ी बड़ी बैटरी है इसकी, और बैटरी इज़ आई थिंक द हैवीएस्ट कंपोनेंट इन दिस वन। लेकिन अगर आपको 260 किलोमीटर की रेंज चाहिए तो फिर बैटरी भी इसी तरह से आपको एक हैवी ड्यूटी किस्म की बैटरी चाहिए होगी। इस वक्त हम हैं बॉश के बूथ के ऊपर। तो बॉश जो हैं ये बैटरीज भी बनाते हैं और मोटर भी बनाते हैं साइकिलों के लिए, बाइक्स के लिए। तो इस वक्त जो जिस साइकिल के साथ हम खड़े हुए हैं ये है परफॉर्मेंस लाइन बॉश की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इनकी मोटर है और इसके अंदर जो है बैटरी यूनिट है, और डिपेंडिंग ऑन आपके टेरेन की, आपके डिपेंडिंग ऑन आपका अपना कितना वेट है और क्या वेदर कंडीशंस हैं, तो बिटवीन 20 to 150 किलोमीटर्स की आपको रेंज मिलती है, जिसमें आपको असिस्टेंस मिलती है। डिफरेंट मोड हैं, एको मोड है, स्पोर्ट मोड है, इसके अलावा डिफरेंट और भी तरह के मोड्स हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मोटर जो है ये बेसिकली इसका ड्राइव यूनिट है। जब आप इसको पैडल तो लाजमी मारने पड़ते हैं, जब आप पैडल मारते हैं तो डिपेंडिंग और आप किस तरह से आपकी साइकिल की स्पीड है और किस तरह से आपकी पैडलिंग की फ्रीक्वेंसी है और कौन से आप गियर में हैं, तो मोटर आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। और ये उसका बैटरी यूनिट है, पावर ट्यूब 500। तो बैटरी काफ़ी इसकी हैवी होती है, और उन्होंने मुझे बताया कि इसके अंदर 500 चार्जिंग साइकिल्स के लिए बैटरी वैलिड होती है। यानी आप बैटरी को मुकम्मल ड्रेन करें 0 पर और फिर उसको चार्ज करें अगर 100 के ऊपर, तो उसका एक साइकिल होता है। तो नॉर्मली जब आपकी बैटरी आधी है, 50% कंज्यूम हुई है, आप उसको दोबारा चार्ज करते हैं तो आपका हाफ साइकिल होता है। तो बेसिकली ये है कि अगर आपका एक नॉर्मल राइडिंग स्टाइल है तो बैटरी आपकी मेरे ख़्याल में 3 से 4 साल तक आराम से आपकी चल जाएगी, अगर आप उसको रोज़ाना मुकम्मल ड्रेन नहीं कर रहे और मुकम्मल चार्ज नहीं कर रहे। और उसका ये कंट्रोल यूनिट है, यहाँ गियर को आप जो उसका असिस्टेंस लेवल है माइनस और प्लस से आप बढ़ा सकते हैं। ये उसके मुख्तलिफ मोड नज़र आ रहे हैं। बैटरी लाइफ नज़र आ रही है, उस टाइम 66% है। टर्बो मोड है, ऑटो मोड है, टूर मोड है, एको मोड है। और उसमें ये बता रहा है कि हाउ मैनी किलोमीटर्स विल यू गेट फ्रॉम द टर्बो मोड, हाउ मैनी फ्रॉम ऑटो मोड, टूर मोड, और इको मोड में 95 किलोमीटर आपको मिलेंगे 66% ऑफ बैटरी के साथ। तो ये बाइसिकल जो है ये डिस्क ब्रेक सिस्टम के साथ इक्विप्ड है और उसके साथ ABS सिस्टम के साथ इक्विप्ड है कि जब आप यहाँ से प्रेस करते हैं तो बेसिकली आपका ना हाइड्रोलिक सिस्टम ना वायर के थ्रू ब्रेक आपकी कनेक्ट नहीं होती, बल्कि एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जिसका पूरा एक अपना कंट्रोल यूनिट होता है, वो डिसाइड करता है कि ब्रेक को किस फ्रीक्वेंसी के साथ और किस पावर के साथ उसने उसको लगाना है, ताकि आपका व्हील जो है वो जैम ना हो जाए। और उसके लिए फिर आपके पास ये बहुत हाई एंड कार्स के अंदर और मोटरसाइकिल्स के अंदर ये सिस्टम होता है, अब ये बाइक्स के अंदर भी आ गया है।
जी इस वक्त हम ऑर्टलीब के स्टैंड के ऊपर मौजूद हैं और ऑर्टलीब जो हैं ये साइकिल के बैग बनाते हैं, वाटरप्रूफ बैग्स, और इनके बैग्स में इस्तेमाल कर रहा हूँ 2011 से, एंड सिंस 2011 दे हैव बीन सपोर्टिंग मी विद द गियर। और जो मज़े की बात है इस वक्त जो ये जो हम रिफ्लेक्टिव बैग देख रहे हैं, ये जो ऑर्टलीब के प्लस बैग्स हैं, ये इनके ऊपर रिफ्लेक्टिव कोटिंग है। और मेरे जो पिछला जर्नी था अर्जेंटीना से अलास्का तक का, वो इन बैग्स के ऊपर था। और ये रात को इनके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो ये चमकते हैं। बड़ा कूल डिज़ाइन है। ट्रेडिशनल बाइक टूरिंग के अलावा बाइक पैकिंग का कॉन्सेप्ट आया है। रैक्स के ऊपर बैग्स लगाने की बजाय आप बाइसाइकिल के फ्रेम के साथ चीज़ें जोड़ते हैं, जैसा कि ये एक फ्रेम बैग है। तो बाइक पैकिंग भी बहुत पॉपुलर हो रही है और उसके अंदर भी इन्होंने बैग्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं। तो ये है मेड इन जर्मनी ऑर्टलिब बैग्स, वाटरप्रूफ। जी इस वक्त हम मौजूद हैं गारमिन के बूथ के ऊपर, हॉल नंबर 11 में। गारमिन की प्रोडक्ट्स में सिंस 2011 आई हैव बीन यूजिंग। और साइकिल के सफ़र के ऊपर जब मैं होता हूँ ना, अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि यार रास्ता कैसे ढूंढते हो। तो पूरा सारा गूगल मैप्स के ऊपर प्लानिंग होती है पूरे राउट की, और जब वो जो राउट बन जाता है जिसमें मुझे उसकी एलिवेशन प्रोफाइल्स भी पता चल जाती हैं, तो ऑल दिस राउट इज़ देन डाउनलोडेड इनटू द गारमिन एज डिवाइस या गारमिन जो बाइसिकल कंप्यूटर है, उसके अंदर राउट आ जाता है और उसके अंदर मैप्स भी ऑफलाइन सेव होते हैं। तो जब मैं साइकिल चला रहा होता हूँ तो मुझे पता होता है, उस राउट को फॉलो करता हूँ और मुझे ये भी पता चल रहा होता है कि आगे चढ़ाई आने वाली है, आगे उतराई है, क्या स्पीड है मेरी, कितना मैं आज दिन में एलिवेशन गेन कर चुका हूँ, इस टाइम करंट एलिवेशन क्या है, कितना डाउनहिल है। वो सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर सेव होती रहती हैं और बाद में उस राउट को स्ट्रावा के ऊपर मैं डाल सकता हूँ या उसको मैं गूगल मैप्स के ऊपर भी शो कर सकता हूँ। गारमिन की जो डिवाइसेस हैं, बाइसाइकिल कंप्यूटर्स हैं, अभी इन्होंने जो निकाला है वो है गारमिन एज 1040। और इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि ये सोलर है, सोलर के साथ ये चार्ज होता रहता है। नॉर्मली पहले ये होता था कि 10 घंटे 15 घंटे के बाद बैटरी डेड हो जाती थी, फिर आपको चार्ज करना पड़ता है। जबकि इसमें जो है ये इसकी बैटरी लाइफ वो बता रहे हैं 45 आवर्स है। लेकिन जब आप इसको सूरज के अंदर इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये अपने सोलर के साथ ये चार्ज होता रहता है और इस तरह से यू कैन गेट अ लॉट ऑफ बैटरी टाइमिंग। क्योंकि नॉर्मली एक्सपीडिशन पर आपको यही टेंशन होती है कि रोज़ाना आपने इसको चार्ज करना ही करना, तो उसके लिए आपको हैवी किस्म का पावर बैंक रखना पड़ता है और फिर ये भी ख़तरा होता है कि पावर बैंक रन आउट हो गया तो आप एक्टिविटी को कैसे सेव करेंगे। तो ये जो गारमिन की जो डिवाइस है 1040 सोलर की, इसके बारे में बड़ा एक्साइटेड हूँ। और एक्चुअली मैंने यहाँ पर आकर गारमिन के रिप्रेजेंटेटिव से बात की और उनको अपनी एप्लीकेशन डाल दी है, तो होपफुली दे विल स्पॉन्सर मी। नहीं जी, अभी यहाँ पर हम एक वर्चुअल राइड करने लगे हैं। सिसली की राइड करते हैं, इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि सिसली में मैंने पहले साइकिलिंग की हुई है। Financially it has been challenging because once you don't have financial sponsors, then you need to find ways to sustain yourself, selling pictures, writing articles, making videos, making websites, doing some odd jobs, working in restaurants, mowing people's lawn, serving tables, working in a print shop, making logos. It's not easy but certainly manageable. I'm at the Pinion's booth in hall number 12. I have been using the Pinion internal gearbox system since 2016, and I'll let Stefan speak a little bit about the Pinion system, how it works. We have a long history of high quality parts, no failure, no issues.
but there's a lot of technique inside that is really miraculous in a way. Yeah. Here you see all the sprockets and cocks, a lot of metal, if you want to say so, high quality engineering that is put into a really compact size that holds for such a long time. We have two hemispheres here, as you can see. One is actually the one where you have your pedals doing all the work, and the other one is the gearing shift axle that really helps you to connect all these amounts of small gears to give you, in the end, 18 gears on a very compact size in high quality. The force is coming in on this part, on these lower 6 cogs that will be transferred to the upper 6 cogs and then go by very small cock holders into an axle that shifts into the second part of the entire gear sprocket system and really transfers all the gears, 18 gears in one thing. It is automotive technology, to be honest. The founders of Pinion were actually engineers at Porsche, working in the gearbox departments, and have transferred this entire technique and philosophy into a bicycle gearbox system that is really perfect. We have lots of test stands in our company where we're doing long-term tests, so we can, in a short term, can test for 30, 40,000, 60,000 kilometers. Wow. But we also have a lot of test riders, like you, for instance, and they have, some of them have really done more than 100,000 kilometers without any problems. Even the first gearbox, no change at all, no failures. Just exchanging the mineral oil inside, 60 milliliters. That's all that you have to do. Yeah, my basic understanding is how it works. That when we, drive the shaft, then the power goes from these sprockets to this part, and then they get engaged, and then power is shifted to these ones. They are also engaged there, and then from there the power is shifted to these ones, and this basically drives the sprocket. Right, And absolutely. I couldn't explain better, come on. Thank you this very is the much. basic understanding, and then the fun part is that you can change the gears even when you are not cycling, and then sometime when you are on a steep uphill, you are riding in gear 1, and suddenly the downhill starts, you go all the way to 18, and this is the fun part. Absolutely, And absolutely. without using both hands and looking at where the chain is, it is such an amazing piece of technology, and I can't wait to use the Pinion gear system in Africa. So thank you so much. Thank you Stefan. very much, Thank you so Kamal. much. It's really a great pleasure. Thank you so much. तो इस वक्त जो है HP वेलोटेक्निक की स्ट्रीट मशीन GTE, जिसके ऊपर मैंने जर्मनी से तुर्की तक का सफ़र किया था, उसको ट्राई करने लगा हूँ। ओके, रेडी? So as you can see that the posture is slightly different, very different actually. कि ये जो है ना, इसके ऊपर आपके पास एक तो एरिया बहुत ज़्यादा होता है, ना सिर्फ आपका बॉटम बल्कि पूरी बैक जो है इसको सपोर्ट मिलती है, तो एरिया काफ़ी होता है, तो इसलिए प्रेशर पॉइंट्स इसमें नहीं बनते, तो वेरी कंफर्टेबल। और दूसरा जो आपकी हैंड की भी पोजीशन है वो ऐसे होती है, आप ऐसे नहीं बैठे होते जिसमें आपकी कमर में दर्द नहीं पड़ रहा होता, आपकी रिस्ट में दर्द नहीं पड़ रहा होता, और आपकी यहाँ पर उंगलियों में दर्द नहीं हो रहा होता एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर राइडिंग लॉन्ग आवर्स। तो इसमें बड़ा आप कंफर्टेबली आप आराम से बैठे होते हैं और आप बस हैंडल को ऐसे मूव कर रहे हैं, तो ऊपर वाला बॉडी जो पार्ट है आपका वो सारा बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में होता है, और लेटे हुए आप जो है बस पैडल चला रहे हैं। तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि चढ़ाई के ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, कंस्ट्रक्शन इसकी है, बड़ी सीट है फुल सस्पेंशन के साथ, इसके ऊपर ये पिछले व्हील के ऊपर ये लगा हुआ है, इसका यहाँ पर एक रेयर सस्पेंशन सिस्टम, और इसका फ्रंट के ऊपर भी आगे शॉक्स लगे हुए हैं, ठीक है। और ये जो है ये पिनियन गेयर सिस्टम के साथ है। मेरी जो बाइसिकल थी वो रोल ऑफ सिस्टम के साथ थी, और ये पूरा एक चेन, एक लंबी चेन का इसका मैकेनिज़्म है। यहाँ पर 2 बैग आ जाते हैं,
और यहाँ पर भी 2 बड़े बैग्स आ जाते हैं। और इस पर ज़्यादा आप तंग मोड़ नहीं काट सकते आप, क्योंकि यहाँ पर सीट की वजह से आप बहुत ज़्यादा इसको रोटेट नहीं कर सकते। और व्हील इसके थोड़े छोटे होते हैं लेकिन ज़्यादा मजबूत भी होते हैं। तो इस वक्त यहाँ पर स्ट्रीट मशीन के अलावा इनके और भी मॉडल्स हैं। स्कॉर्पियन के जो ख़ास बात है ये इसमें पोजीशन आपकी और ज़्यादा लोअर हो जाती है और इसके 3 व्हील्स हैं। और ये इन्होंने इक्विप किया हुआ इस स्कॉर्पियन बाइसिकल को विद ई बाइक सिस्टम। तो इसकी यहाँ पर नीचे बैटरी भी है एंड देन यू कैन सी द मोटर हेयर एंड इट बिकम्स वेरी कंफर्टेबल। लेट मी जस्ट सिट हियर। इट्स वेरी कंफर्टेबल और पूरा दिन आप इसके ऊपर बैठे रहें और साइकिल चलाते रहें। While you are cycling, you can maybe even read a book. E-bikes का यहाँ पर बहुत चर्चा है। यहाँ पर इस यूरो बाइक में हर बाइसिकल मैन्युफैक्चरर ने E-bikes अपनी लगा रखी हैं। ये स्ट्रोमर की एक स्विस कंपनी है और इसमें मैसिव किस्म की बैटरी पड़ती है। स्पीड आप 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर आप इसको चला सकते हैं और रेंज जो है वो 150 किलोमीटर से लेकर 260 किलोमीटर तक है। ठीक है, यहाँ पर इसकी असिस्टेंस लेवल्स हैं प्लस और माइनस के। प्लस करते जाएंगे तो आपके पास असिस्टेंस लेवल बढ़ते जाएंगे S। ठीक है, ये कम करेंगे 3, 2, 1। यहाँ पर वी कैन सी द बैटरी लेवल हेयर, 99% बैटरी एंड देन इट हैज़ अ पिनियन सिस्टम एंड देन यू कैन शिफ्ट द गियर्स हेयर। So it has a 12-speed system. So I'll start with the mode 1 and it even has a light, nice brakes, and I think it is all electronic system because you can't see the cables here. So let's try. So it feels amazing, the kind of assistance that you get. You know, I think you cannot sweat to work. इस वक्त हम यूरो बाइक के बब्बू बाइसिकल्स के बूथ पर हैं और ये बनाते हैं कार्गो बाइसिकल्स। ये इस तरह आप देख सकते हैं, इसके ये 3 व्हील बाइसिकल है। इसके अंदर आप कार्गो भी डाल सकते हैं और यू कैन हैव सम किड्स सिटिंग ओवर हियर। और अब हम क्या करने लगे हैं, और ये है भी ई बाइक, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा अगर आपने इसमें काफ़ी हैवी सामान रखा हुआ है। तो अब हम इसको ट्राई करने वाले हैं और मैं मोरिट्स को कहूँगा कि वो इसके अंदर बैठे और हम एक छोटी सी राइड पर चलते हैं। Moritz, why don't you come and sit in the bicycle? और ये फिल्म कर रहे हैं और हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं क्योंकि ये ई बाइक है और बड़े तेज़ी से चलती है और मैं ये नहीं चाह रहा कि हम दोनों गिरे पड़े हों। तो बड़े प्यार से, बड़े आराम आराम से हम जा रहे हैं। ये जी माई राइडर बाइसिकल बड़ी इंटरेस्टिंग बाइसिकल है और ये है फोल्डेबल बाइसिकल। जब आप इसको फोल्ड करते हैं तो बिल्कुल एक छोटी सी हो जाती है और इसको आप कहीं भी पैक करके लेके जा सकते हैं, ट्रेन में। और जो नॉर्मल बाइसिकल्स होते हैं उनके व्हील बड़ा होता है, उनको ट्रांसपोर्ट करना इंटरनेशनली उनके लिए स्पेशल बैग्स चाहिए होते हैं और बड़ी हैवी हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये माई राइडर है फोल्डेबल बाइसिकल, बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। और मज़े की बात यह है कि इट्स एन इलेक्ट्रिक बाइक, तो इसमें मुख्तलिफ 1 से लेकर 5 के असिस्टेंस लेवल भी हैं। और ना सिर्फ ये, आप जब इसको प्रेस करते हैं तो ये मुकम्मल जो है वो पावर मोड में आ जाती है, फिर आपको पैडल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसको ट्राई करते हैं। अभी इस टाइम ये 0 के असिस्टेंस मोड पर है। मैं इसको 1 के ऊपर और फिर लेकर 1 से लेकर 5 तक ट्राई करने वाला हूँ और देखते हैं कैसा ये परफॉर्म करती है फोल्डेबल ई बाइक। लेट्स गो। ओके ओके, ये जी सुपर 73 बाइसिकल है, मोटरसाइकिल की तरह लगती है। देखें जिस तरह से ऐसे इसकी टैंकी लग रही है, ये इसकी बैटरी है। और अगेन ये ई बाइक है। यहाँ पर ई बाइक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इसके टायर चेक करें आप, मतलब हमारे यहाँ जितने मोटरसाइकिल के टायर होते हैं ये उनसे भी चौड़े टायर हैं। और फ़ायदा उसका ये होता है कि ज़्यादा मोटर टायरों से एक तो बाइसिकल कूल लगती है और दूसरा ये है कि आप इसमें हवा कम रखें तो कुशन ज़्यादा प्रोवाइड करती है। और इसमें जो एक ख़ास बात है ये है कि ये फुली सस्पेंशन बाइसिकल है। ठीक है, फ्रंट पर भी सस्पेंशन है, रेयर में भी सस्पेंशन है और गियर भी हैं। डिरेलर सिस्टम है इसका, बिल्कुल जिस तरह से मोटरसाइकिल लगती है ये उस तरह की लग रही है। सो आई एम गोना ट्राई दिस सुपर 73 बाइक एंड सी हाउ इट गोज़। लुक्स वेरी कूल टू मी, अमेजिंग। इसके अंदर अच्छा ना एक सेंसर लगा हुआ है, टॉर्क सेंसर, यानी जितना आप ज़्यादा ताकत लगाएंगे ना इसके ऊपर, पैडलों के ऊपर,
ये उतनी ज़्यादा असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, लेकिन मैक्सिमम स्पीड इसकी जो है वो 25 किलोमीटर पर आवर है। अदरवाइज़ उसके बाद जो है ये मोटर बाइक है ना, लाइट मोटर बाइक की रेंज में आ जाता है, तो इसको फिर उसको लाइसेंस प्लेट की ज़रूरत पड़ती है। तो 25 किलोमीटर तक आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। और व्हाट अ ब्यूटीफुल बाइसिकल। I love these Ortlieb bags because you know I carry a lot of camera stuff, and when I'm on the road on long distance tours, I have to be self-sufficient. I need to have the food, I need to have all the spare parts. I can carry a lot of camera gear, camping gear, you know, and then Everything. So the bags are very important, and you know, as we are on long distance travel, sometimes there is rain, sometimes it's snowing, sometimes it's harsh sunlight, sandstorms, all kind of imaginable situations. So I need to have enough capacity, and you know the bags need to protect the camera stuff. Your gear is very important because your life depends on it. So I love these Ortlieb bags. I have been using them since 2011 and super happy about those. And what's your favorite bag of theirs? Most of my stuff is in these bags, but I think most favorite is the handlebar bag because this is where I put my camera and my wallet, my phone, and this is the bag that I'm interacting with most of the time. So anywhere I stop, my first reaction is open this thing up, take out the camera, grab a couple of pictures, put it back, and then, you know, close it. Bicycle touring is not a hobby, sport or adventure. You not only see destinations but also experience what comes in between. My name is Kamran Ali and I have been cycling the world for the past 7 years. So my story starts in a small town of Pakistan called Laya. Dad used to repair old tires for a living. He was the only breadwinner of the family. There were a lot of expectations from me since I was a child that Kamran is going to become something in life and let's push it as much as we can. My first bicycle tour was a 26 kilometer from Laya. Cycling is a poor man's vehicle. That's the perception. I was so afraid of that tour because I had not planned that and it was cold. It was cold at 4,200 meter altitude and he was wearing sandals.